عمران خان کا پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ شروع کرنے کا اعلان، کہا امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر شہر میں نکلوں گا، غیرت مند عوام کو بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا۔ شہباز شریف کے خلاف 40 ارب کی کرپشن کے کیسز ہیں، جس دن کال دی شہباز شریف کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ الیکشن کا اعلان ہونے تک سڑکوں پر رہیں گے، قوم کو فیصلہ کرنا ہے غلامی کرنی ہے یا نہیں۔ کہتے تھے عمران عوام میں گیا تو انڈے پڑیں گے، دیکھیں پبلک میں انڈے کس کو پڑیں گے۔ بیرونی سازش ناکام نہ بنائی تو آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ سوال اٹھایا، میں نے کیا جرم کیا تھا جو رات 12 بجے عدالت کھولی گئی؟ اداروں اور عدلیہ کے خلاف کبھی قوم کو نہیں بھڑکایا، لیکن پاکستان کی سلامتی چوروں کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانیوں کو لاہور شہر میں قتل کر دیا، کوئی نہیں پکڑا، کسی نے اس کو بھیج دیا باہر۔ سہالہ کے اندر امریکنوں نے 26 پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا، جنگ ان کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں۔ سلالہ میں امریکہ نے 26 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا۔ ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں 2 شہریوں کو قتل کر دیا، اسے باہر بھیج دیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں امریکی ڈرون حملوں میں بے گناہ لوگ مارے، زرداری اور شریفوں کے منہ سے ایک آواز نہیں نکلی۔ امریکی جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں کیپی کے لوگوں نے دی۔ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہمارے ہی لوگوں کو مارا جا رہا تھا۔ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے سوال پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ میری خارجہ پالیسی میری قوم کے لیے تھی، کسی اور کے لیے اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ سارے میرے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم میں اور پیپلز پارٹی میں کیا ملتا ہے؟ راتوں رات ان کی گود میں بیٹھ گئے، کیا وجہ؟ عمران خان نے الیکشن کا چیلنج دیا تو مخالفین دم دبا کر چھپتے پھر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عمران خان نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ سب چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم راتوں رات پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھ گئی۔ 16 اپریل کو پیپلز پارٹی کی حقیقت کا پردہ چاک کرنے کا اعلان۔ شیخ رشید نے کہا 16 تاریخ کو کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہیلو ہائی کروں گا۔ عمران خان کے لیے جیلیں بھرنے کا اعلان بھی کیا۔ قاسم سوری کی نوجوانوں کو بکاؤ مال کے مقابلے کی دعوت، کہا کٹ پتلیوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ جلسے سے پرویز خٹک، وزیر اعلیٰ محمود خان، فرخ حبیب اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ دو 2018 میں عمران خان ہمارا انتخاب، اب ہماری ضد ہے، عوام ڈٹ گئے۔ پرجوش شرکا کا امپورٹڈ حکومت مسترد کرنے کا اعلان۔ پشاور جلسے میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سونامی امڑ آیا، مرد اور خواتین، بزرگوں سمیت عوام کی بہت بڑی تعداد میں شرکت۔ جوش و ولولہ عروج پر، پارٹی پرچموں کی بہار۔ عمران خان کے حق میں واشگاف نعرے، فضا میں لوٹے بھی اڑتے رہے۔ شاندار آتش بازی نے تحریک انصاف کی عوامی مہم کو 4 چاند لگا دیے۔ مہم کے اگلے مرحلے میں کراچی میں 16 اور لاہور میں 21 اپریل کو جلسے ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا صبح سویرے اسلام آباد ایئرپورٹ تا پشاور موڑ میٹرو بس منصوبے کا دورہ۔ منصوبے کو مکمل کرنے میں 4 سال کیسے لگ گئے؟ وزیراعظم شہباز شریف کی متعلقہ افسران سے باز پرس۔ منصوبے میں التوا پر موقع پر فوری انکوائری کمیٹی بنانے کا حکم دے دیا۔ امریکہ کی شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کہتے ہیں پاکستان 75 سال سے وسیع تر باہمی مفادات کا اہم پارٹنر رہا ہے، دیرینہ تعاون کو آگے بڑھانے کے منتظر ہیں۔ چینی وزیراعظم کی بھی مبارکباد، کہا شہباز شریف پاک چین لازوال دوستی کو پروان چڑھاتے رہیں گے، دونوں ممالک مشترکہ سیاسی اعتماد مزید مضبوط کریں گے۔ سی پیک کے تحت عالمی معیار کی تعمیر کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے ٹویٹر پر مبارکباد دی، کہتے ہیں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہیں،
मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। शहबाज शरीफ का जवाबी ट्वीट में बरतानवी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और बरतानिया के गहरे और वसी तर बाहमी ताल्लुकात हैं। दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद तौसी देकर अगले दर्जे तक ले जाएंगे। मेरे हवाले से फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात फ्री मीडिया पे आ रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। पाक फ़ौज के रिटायर्ड जर्नैलों ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप्स जाली करार दे दिए। ISPR ने कहा कि सोशल मीडिया पर जाली ऑडियो क्लिप रियासती इदारों के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन मुहिम है। साबिक आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग कहते हैं उनसे मंसूब जाली ऑडियो क्लिप प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम कहते हैं कोई फौजी अपने इदारे के बारे में ऐसा कहने का सोच भी नहीं सकता। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने कहा जाली ऑडियो भारत से जनरेट हुई है। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम PTI की जानिब से मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के शवाहिद न मिले। ज़्यादातर अकाउंट्स का ताल्लुक भारत से निकला। यूरोप और दीगर ममालिक से भी अकाउंट इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक FIA बगैर नोटिस गिरफ्तारियां नहीं कर सकती। गिरफ्तारियों और दफात लगाने में FIA शशो पंच का शिकार। अब तक सिर्फ शफकत मसूद से मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। शफकत मसूद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तहरीक इंसाफ का धमकी आमेज मरासले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं तहकीकात न कराई तो यह आइन और आवाम के साथ खिलवाड़ होगा। चैलेंज किया हमारे बगैर मुल्क चला सकते हैं तो चला कर दिखाएं। इमरान खान चाहें तो पूरा मुल्क ब्लॉक कर सकते हैं। अब हर हफ्ते आवाम बाहर निकलेंगे। बहरान इतना बड़ा हो जाएगा कि सबके हाथ से निकल जाएगा। मुल्क को नए इंतखाबात तक ले जाना हमारी मंजिल है। नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी करने का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हम्माद अजहर ने कहा उन्होंने पहले ही दिन अपने 3 कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिए। अभी 2 दिन गुजरे हैं, अमेरिका ने अपनी ही हुकूमत से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद आमद। वज़ीर आज़म ने स्पीकर के चुनाव के लिए MKM से ताउन मांगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अब इस्तेहकाम पाकिस्तान का सफ़र तय करना है। उम्मीद है कराची समेत शहरी सिंध से ज़्यादतियों का अजाला होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह से 1-on-1 मुलाकात। कराची समेत सूबे के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा वफाक सिंध हुकूमत के शाना बशाना खड़ा है। KCR को CPAC का हिस्सा बनाएंगे। कराची के लिए पानी की ज़रूरियात और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में इनकलाबी इक़दामात का वादा। हम मुल्क में जमहूरियत बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने CNN को इंटरव्यू में कहा इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे और माशी मसाइल हल करेंगे। PP चेयरमैन ने ट्वीट में कहा ज़िया गया, मुशर्रफ गया, सिलेक्टेड गया, जिए भुट्टो। हमने पाकिस्तान के आवाम से किया वादा निभा दिया। अवामी मार्च ने सिलेक्टेड राज से आज़ादी के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईद के बाद जालों की सताइश का प्रोग्राम होगा। कौमी असम्बली के 16 अप्रैल को होने वाले इजलास का शेड्यूल तब्दील। हफ्ते की बजाय इजलास अब 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगा। शेड्यूल में तब्दीली कायम मकाम स्पीकर ने क़वायद ज़वाबित के तहत की। मरासला जारी। नून लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं कायम मकाम स्पीकर ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। कासिम सूरी 1 माह में 3 मरतबा आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। बहुत से हमारे दोस्त जो PTI से इलेक्टेड मेंबरान थे, उनका ये कहना है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते और उनके इस्तीफे ज़बरदस्ती ला के
जमा कराए गए हैं यहाँ पे। बहुत से पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफे नहीं देना चाहते। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का दावा, कहते हैं कई मेंबरान ने खुद कहा कि उनके इस्तीफे जबरदस्ती जमा कराए गए। कौमी असम्बली के अमले को इस्तीफे मंजूर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द कराने की हमजा शहबाज की दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 16 अप्रैल को ही होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फरीक़ैन गैर जानिबदारी से आइनी फ़राइज़ अंजाम दें। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के इख्तियारात बहाल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इलेक्शन कराने का हुक्म, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन की शफाफियत पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। कल जो मैरियट में वाक़या हुआ है, कोई किसी रुकन की तरफ किसी ने नारा लगाया, गाली दी या आवाज़ निकाली, इससे बुरा असर होगा। ये मैं आपको आज बड़ा क्लियर बताने जा रहा हूँ। किसी ने हमारे रुकन के खिलाफ नारे लगाए तो हशर कर देंगे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की धमकी, बोले वही हाल किया जाएगा जो इस्लामाबाद के होटल में किया था। हर जगह गो नवाज गो के नारे लगाए जाते थे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कारकुनों को हिदायत देगी। खान साहब की और हमजा शहबाज साहब की हुई है लड़ाई। इसी बदनामे जमाना होटल के अंदर अलीम खान साहब को थप्पड़ पड़ा है। इन्हें यह गलत फहमी थी कि हमें स्पीकरशिप मिलेगी। अलीम खान साहब ने कहा कि आपने हमें कमिटमेंट की हुई थी, इसके ऊपर इनकी लड़ाई हुई है। हमजा शहबाज और अलीम खान में लड़ाई हो गई, अलीम खान को थप्पड़ पड़ा है। फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा वाकया उसी होटल में पेश आया जहां एमपीएस रह रहे थे। हमजा शहबाज की तरदीद, बोले अलीम खान भाई और सीनियर सियासतदान हैं। पंजाब में वाज़ेह शिकस्त देखकर ऐसी बेपर की उड़ाई जा रही है। अलीम खान के तर्जुमान ने भी झगड़े की तरदीद कर दी। FIA साइबर क्राइम विंग के सरबराह को ओहदे से हटा दिया गया। बाबर बख्त कुरैशी का तबादला। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में अहम तकर्रियों और तबादलों का इम्कान। वज़ीर आज़म ऑफिस ने 25 ब्यूरोक्रेट्स के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। ये अफसरान नून लीग के साथ पंजाब और वफाक में काम कर चुके हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुशीर बनाने पर गौर। साबिक सेक्रेटरी दाखिला आज़म सुलेमान को भी अहम ओहदा देने का इम्कान। बाहर से पैसा आया है लेकिन ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम गलत है। किसी भारतीय शहरी से कोई फंडिंग नहीं ली। फंड्स देने वाले गैर मुल्की हैं तो अकबर एस बाबर अपना इल्ज़ाम साबित करें। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के वकील के दलाइल, समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। फरूख हबीब कहते हैं तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने सियासी फंडरेजिंग की बुनियाद रखी। हम इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं। मरियम और बिलावल को चैलेंज है, अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन आए। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर अहमद आगा मुस्तफ़ी, इस्तीफ़ा सदर आरिफ अलवी को भेज दिया। कहते हैं 40 अरब रुपए के करप्शन केसेस वाला इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म कबूल नहीं। ज़हूर अहमद आगा ने जुलाई 2021 में गवर्नर का ओहदा संभाला था। तकरीबन 9 महीने गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सोशल मीडिया पर मुसलसल 4 रोज से टॉप ट्रेंड। 64 लाख से जायद मरतबा पाकिस्तानियों ने ट्वीट करके इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा टॉप ट्रेंड रखा हुआ है। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को होंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध का ऐलान। पहले मरहले में सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास डिवीज़न में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान 30 जून को करेगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात रीशेड्यूल करने की आइनी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक सूबे के 23 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को ही होंगे। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। शाहीन आफरीदी
4 दर्जे बेहतरी के बाद टॉप 10 में आ गए। बल्लेबाजों में पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शम्सी का राज। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,30,601 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,11,970 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,338 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।